हेलो गाइस, आज हम लोग सॉल्व करेंगे ये इंग्लिश क्लास 7 का ये टेस्ट पेपर जो कि है पीरियोडिक टेस्ट 2 का। ये साल थोड़ा सा गलत है, आप इसे ठीक कर लीजिएगा। ये आपका पेपर है 20, 25 और 26 का, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। तो हमें इस पैसेज को पढ़ना है और जो क्वेश्चंस है उन्हें सॉल्व करना है। स्वच्छ भारत अभियान और क्लीन इंडिया मिशन is a navigated campaign launched by the government of India on October 2, 2014। तो ये देखिए 2014 में लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर को। क्लीन इंडिया मिशन या फिर स्वच्छ भारत अभियान। The vision aims the environment of effective improving the waste management and promote cleanliness। देखिए उसमें क्या होता था, कोई भी गंदगी नहीं फैलानी थी और क्लीननेस को प्रमोट करना था अर्बन एंड रूरल एरियाज दोनों में, यानी कि गांव और शहरी इलाके दोनों में। ये इंस्पायर हुआ था महात्मा गांधी से, who believed in cleanliness. It's essential in the national progress। ये एसेंशियल है नेशनल प्रोग्रेस के लिए। अंडर दिस कैंपेन people are encouraged to practice activity in cleaning their surroundings, school, colleges, office and community organizations. Cleanliness drivers spreading awareness about proper waste disposal and hygiene. The mission has also focused on building toilet। इसमें क्या होता था कि टॉयलेट बनाना भी इसमें क्या था, और जो लोग थे वो प्रैक्टिस करते थे अपने स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस और कम्युनिटीज के पास साफ रखने के। और रूरल एरिया में टॉयलेट बिल्ड होना ये भी एक चीज है। स्वच्छ भारत has brought signification by changing to society. Many villages have become one defense free. Cities had adopted better waste management system. The campaign also ignited recycle plastic use and planting trees to create a clean healthy environment। तो देखिए हुआ क्या था, ये हमारे एनवायरमेंट को साफ, हमारे नेचर के लिए सब कुछ सही ऐसा रखने के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए, ऐसे कि आप इसमें देख सकते हैं पैसेज में लिखा है। सो गाइस देखिए अब हम इसके एमसीक्यूज करने वाले हैं। व्हेन वो स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च, तो हमारा आंसर ये होगा अक्टूबर 2, 2014 हमारा आंसर ये है। तो चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं। तो अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। Who was inspired with स्वच्छ भारत अभियान? महात्मा गांधी। What is the major focus on the campaign in rural areas? Building toilets. What does the mission promote the term waste management? तो recycling and reducing plastic use. What does the campaign remind citizen? Cleanliness in duty every citizen. तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम अब ये वाला क्वेश्चन करेंगे। व्हाट डज कैंपेन रिमाइंड सिटीजन? क्लीननेस इन ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसके अंदर मेनली कन्वर्सेशन के बारे में लिखा गया होगा और एक्टिव कम्युनिकेशन अंडरस्टैंडिंग के बारे में बताया गया है। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को करते हैं डायरेक्ट। Why is conversation important? क्यों इम्पोर्टेंट है? Conversation is essentially a part of human interaction. It allows people to exchange ideas, share emotions, and build relationships. What does active listening means? Active listening आपको दिख रहा है? Active listening means paying attention to what the other person is saying without interrupting.
conversation help in solving problems? Conversation also contribute, यहाँ पर है, हाँ, conversation also contributes to learn and problem solving by discussing ideas and seeking different perspectives. यहाँ तक लिख दीजिएगा, also को हटा दीजिएगा। और यहाँ पर फोर्थ, what are the keys skill for good conversation? The key skill for good conversation is listening और एक्टिव लिसनिंग, ये आप लिख सकते हैं। What does the word emotion refer to? Thoughts and ideas, ठीक है। What been frequent and used in context conversation option, तो इसका मतलब रेयर हुआ है पैसेज में। सेक्शन डी, राइटिंग एंड ग्रामर, write a letter on your younger sibling advising them to stay focused on and their studies and not waste time, or write a letter to principal of your school complaining about instant condition of your washroom and requesting immediately action to improve hygiene and cleanliness। तो गाइज ये जो तीसरा वाला क्वेश्चन है, लेटर वाला, अपने सिबलिंग को लिखना है, ये आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और अब ये जो राइट लेटर है प्रिंसिपल को, ये भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट पेज पे भी। अब आप यहाँ पर देखिए, हमें एक पैराग्राफ लिखना है, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ और विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। तो फिर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ। तो हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे, आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिफ्थ वाले। ग्रामर, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो हमें इन्हीं मीनिंगफुल सेंटेंस पे अरेंज करना है। एक्साइटेड वॉज द व्हेन रिसीव लेटर शी द, तो इसका होगा शी वॉज द excited, she was the excited when the letter received, ये हो जाएगा इसका। और ये इसका for to you waiting have I been long, तो इसका होगा I have been waiting too long for you, ठीक है। फिर अगला, trees many flower in the blooming garden, the trees and many blooming flowers in the garden, ये हो जाएगा। Identify whether the following presents in active और passive voice, तो इसका पहले का होगा passive voice, the book was written by शहारा, ये passive voice में है। The teacher praised the students, active voice में है ये। The letter has been sent by the manager, ये भी हमारा पैसिव वॉइस में है। द केक इज बीइंग बेक्ड बाय माय मदर, ये भी पैसिव वॉइस है, ठीक है। तो अब लिटरेचर करेंगे हम लोग, हमारी बुक का है। रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिलो। Meadows have surprises. You can find them in if you look. Walk softly through the velvet grass and listen the brook. तो क्वेश्चन है हमारे, एमसीक्यू फॉर्म है। What do meadows offer according to the poet? तो सरप्राइजेस हमें ऑफर कर रहा है। अगला, what does poet mean by velvet grass? The grass left feels small and smooth. Grass thick and long, grass that shine in hard dark, that make noise when we stepped on. तो इसका होगा पहला वाला, grass that feels soft and smooth, ओके, क्योंकि उसके अंदर लिखा हुआ था सॉफ्ट ग्रास। तो अब हम आगे की तरफ देखते हैं। हाउ कैन वन डिस्कवर सरप्राइजेस इन meadows? तो देखिए हम सरप्राइजेस को कैसे ढूंढ सकते हैं विडोज को। वी कैन फाइंड सरप्राइजेस
In meadows, if we look, there are many surprises in meadows like sunlight, soft velvet grass, etc. ओके, आपको समझ में आ गया होगा. Identify and explain the rhymes schemes on sentenza. तो देखिए हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है इस राइम को जो कि स्टैंजा में है. तो देखिए, meadows have surprises. meadows have surprises को क्या लिख देंगे, that meadows have many surprises. You can find them if you look. If we look, we can find. उसका आंसर मैं बता रहा हूँ. Walk slowly through the velvet grass. We have to walk slowly in the soft velvet grass and listen the brook. तो ये आप लिख देंगे तो आपका इसका आंसर बन जाएगा. तो अब अगला वाला क्वेश्चन करते हैं. Answer the following question. What happened to Oompa Loompa Adventure after taking the drops of Vitamonk? तो देखिए, ओम्पा लुम्पा जो वो इन्वेंशन थे, एक साइंटिस्ट थे, फाउंडर थे और ये कंपनी के ओनर भी थे. तो इन्होंने ना क्या किया था, एक फॉर्मूला बनाया था जिसका नाम रखा था इन्होंने विटामॉन्क, जिसके अंदर एक ओल्ड साइंटिस्ट बहुत ज्यादा बूढ़े, उनका दाढ़ी, अरे सॉरी दाढ़ी नहीं, उनका नाखून और एक बहुत ज्यादा पुरानी कैट, उसके जो वो नहीं होते मूछ जैसे, वो बहुत सारी उसमें अंदर पुरानी चीजें डली हुई थी. तो उसमें पूछ रहा है कि ओम्पा लुम्पा जी को क्या हुआ था. तो ओम्पा लुम्पा जी उनके फ्रेंड थे बेसिकली. तो हुआ क्या था, उस जो साइंटिस्ट था उनके फ्रेंड को दिया गया था ये चीज कि आप इस सॉल्यूशन को टेस्ट कीजिए. तो उसमें होता क्या है, वो 75 साल के हो जाते हैं. तो अब आगे बढ़ते हैं. When was the bear tied up with a chain? तो देखिए बियर कब टायर हुआ था, हमने पढ़ा भी होगा. The bear was tied when it was getting too late. When it was getting too late and the woman is not coming from the wedding. ये लिख दीजिए, आपका हो जाएगा. फिर अगला क्वेश्चन करते हैं. What made grandfather to decide transfer Timothy to zoo? The Timothy was getting too wild. That's why the grandfather transferred Timothy to the zoo. Okay. What shocked grandfather in the end? तो चलिए देखते हैं कि ग्रैंडफादर को लास्ट में क्या शॉक्ड हुआ. When grandfather found that it was not Timothy, it was other tiger, then grandfather was shocked. Okay. अब अगला क्वेश्चन करते हैं. Discuss plan A, B, C in dad and cat tree. The reason for their respective features. तो मैं इसका नहीं लिखूंगा, मैं इस लास्ट वाले का लिखूंगा. How should we behave with the pest? Write your answer with the reference in the chapter Bear Story. तो देखिए हम क्या करेंगे. We do not have to disturb animals or complain against them if they don't do anything wrong. Okay, just like in the bear story, when the woman scolded the bear, the old chef told that the same thing. Okay, तो हमारा ये वाला हो गया और यहाँ पर हमारा ये टेस्ट 2 वाला पेपर जो है वो कंप्लीट हो गया है. ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. हमारे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा. अगर आपको ये पेपर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को और शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये पहुंच पाए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.